कि अगर आपकी बॉडी पे दाग है तो यू आर अ विच, अगर आपका बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो गया है तो यू आर अ विच, क्योंकि आपने डेविल के साथ कॉन्सुमेट किया था। हम विचक्राफ्ट को हमेशा हैरी पॉटर की मूवी से कनेक्ट करते हैं इन फर्स्ट गो। 1 million women and kids were burnt alive and their husbands were made to watch in the name of witchcraft. आपको कब लगा कि that I am a witch? There is nothing to fear. What is witchcraft? Witchcraft is energy manipulation. विचक्राफ्ट को अगर हम हिंदी में बात करें तो जादू टोना। वशीकरण कह सकते हैं। कॉन्जरिंग की बात कर लो, उसके अंदर अलग आपको एक सिस्टम दिखाया जाता है, डॉल्स, वुडू डॉल्स एंड एवरीथिंग। वो डॉल के अंदर उस इंसान का डीएनए जाता है, उसके बाल, नेल्स, हर्ब्स जाती हैं। So whatever I'm going to do to the doll will happen to that person. जो ब्लैक मैजिक करते हैं, चाहे वुडू भी सफर करते होंगे, कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर भी इम्पैक्ट आता होगा ना भाई। Every time I do a healing ritual for somebody, it takes a chunk off of me. It does. Have you not seen the Conjuring movie? Yeah. 99% रियल है। जो मूवीज दिखाते हैं, your bones are cracking, your voice is changing। अंदर एक कमरा था, उस कमरे में ना लाइट नहीं थी, एक बल्ब जल रहा था। वो बल्ब के नीचे उन्होंने उस लड़के को कुर्सी पे बिठा रखा था, रस्सियां बांध के। Oh my God, okay. और ये लड़का वो वहाँ पे बैठा हुआ और झूम रहा है, हिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ एडी, 99% साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बट दैट 1% इज द रियल डील। थोड़ी देर के बाद घंटी बजी, हमने देखा कोई नहीं था। हमने कहा यार रात को 2:30 बजे कौन बच्चा ये प्रैंक कर रहा है। तो 2:30-3 बजे का टाइम था। अब मैं सो रहा था, मुझे हाथ पकड़ के किसी ने उठाया। कर्ली बाल हैं उसके, उसने वाइट एंड ग्रे चेक की शर्ट पहनी है, मेरे पलंग के पास खड़ा है। Hello everyone, welcome to the Attitude Show. Today I have my guest, Dr. Anuj Elvis, and he's one of the first and the finest witch, male witch. Okay, I know male witch सुन के थोड़ा सा बड़ा kind of confusing लगता होगा, क्योंकि हमने अक्सर इस वर्ड को बड़ा डिफरेंट नेगेटिव सेंस से परसीव किया है, या पता नहीं किस सेंस से परसीव किया है, शायद हम समझ ही नहीं पा रहे। So today I'm gonna take you through a different journey, a different microscope, a different telescope to see the world. So Dr. Anuj, a warm welcome on the show. Thank you very much for having me, Adi. It is wonderful to meet you. I'm like, pleasure is all mine. No, you are such a wonderful person. Yeah, you're making me feel at home. It's so cool. ऐसा लग ही नहीं रहा हम पहली बार बात कर रहे हैं. It's amazing. I'm like, sir, this is all about the energy, and maybe it's a witch energy. I'm going to emphasize on आज यही होने वाला है forecasters. So I'm like, just to bring everyone, all our audience into the joke, right? So when I spoke to you and मैं आपसे बात कर रहा था, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यार जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो there is no barrier, there is no wall which I have to find a door into or break through to connect with you. So is this something, a natural persona of yours? It's a witchcraft energy or something you carry with you? Well, I want to take all the credit and say it's my natural persona, but it's not, which is because we work a lot of magic, we work a lot of spells and rituals. So our energy is like that. बहुत inviting energy हमारी होती है. Layman term में आप इसको वशीकरण कह सकते हैं कि हमारे चेहरे पे होता है. It's not that I'm controlling you or anything like that, but it's just the glamour that we have, the aura that we have. It is so clear and healing that it makes people comfortable. So it draws you in. I mean, sometimes people can maybe, you like you saying it, that you know this energy which is building into you, or maybe you accept it, right? But I really want to understand that आपको कब लगा कि that I am a witch, और या मेरे अंदर ये energy है और ये persona है, या whatever power आप बोलो इसको, या एक art बोलो या craft बोलो, I don't know how to distinguish it. Maybe हम witchcraft को हमेशा हैरी पॉटर की मूवी से connect करते हैं in first go. Right. And of course, there's a good side and the evil side, the one who should not be named, and Dumbledore and the gang, right? So, what do you say on that? I don't think ऐसा कोई turning point था जब मैंने decide किया था मैं. I always knew because I'm born with the abilities that I have, and my mother had it, my great grandmother had it, my grandmother had it, my son has it, my sister has it. So I've grown into it. I've lived my life in it. So बहुत सारे लोगों को practice करना पड़ता है, सीखना पड़ता है. मेरे घर में वो तरीका ही वही था. It's how we've lived. But then Harry Potter, yes, आजकल की generation को witches is equal to Harry Potter होता है, because Disney has polluted it so much that अभी आप मेरे को मेकअप रिमूवर दो, मैं मेकअप निकालता हूँ, अंदर से ग्रीन स्किन निकल के आएगी मेरी और बड़ी नाक, और डेफिनेटली प्रोटीन शेक के नाम पे बच्चे तो नहीं खाता मैं, व्हाट आई मीन. सो ये मूवीज ने किया है, ये पॉल्यूट किया है. और लोग अक्सर, देखो हम ह्यूमंस हैं एडी, जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं होता ना, हमें उससे डर लगता है.
there is nothing to fear. What is witchcraft? Witchcraft is energy manipulation. Energy manipulation से कैसा डरना? ये कोई धर्म नहीं है. It is not a religion. It is a path. So you manipulate energy in your favor. That is witchcraft in layman's term. बट बहुत वेरी सेल्डम आई वुड से पीपल आर वेरी ऑफ कोर्स एक तो फियर ऑफ अननोन होता है जो आपने क्लियरली बता ही दिया राइट जिसको आप समझते नहीं हो आप उससे डरते हो Correct. और जिस चीज का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं था शायद उसको आप फेथ बना लेते हो Right. या उसको भगवान मान लेते हो Hmm. although I'm also a very true believer in God, religion, and spiritual power, energy, universe, and all that shebang, right? But at the same time, witchcraft को अगर हम हिंदी में बात करें तो जादू टोना करेक्ट Right. बचपन से ही आपके माइंड को एक तरीके से ट्रेन किया जाता है कि मीठा खा के मत निकलना, रात को इत्र मत लगाना, आप दही खा के जाओ अच्छा काम करना है, ये सुपरस्टिशंस कह लो क्या आजकल लोग उसको स्पिरिचुअलिटी के नाम पे एक रेमेडीज भी बताना शुरू कर बेच रहे हैं. आई विल नॉट से दैट मे बी इट वर्क्स फॉर सम पीपल जो बिलीव करते हैं उनके लिए काम करते हैं जो नहीं करते शायद नहीं करता बट आपके लिए एट व्हाट एज और एट व्हाट टाइम आपको ये रियलाइज हुआ कि यार मेरे को ना इसमें लॉजिक ढूंढना है या मैंने अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू करा It happened at the age of 13, and I remember it clearly. I'll tell you why. Because, I was born into Christianity. और वो religion, it's a beautiful religion, but I had too many questions as a kid. At the age of 13, I started looking for answers, And the scripture starts with a particular verse wherein it says that everything was dark and the Spirit of the Lord, moves around the earth. So my question to a lot of priests were, that was in Bible, right? It's in Bible. Okay. So my question was that where did the Spirit of the Lord came from? तो अगर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था तो वो आया कहाँ से? लोगों ने ना मुझे आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का कभी भी, या तो डांट के चुप करा देते थे कि छोटा बच्चा है या कुछ बेवकूफी का सवाल पूछ रहा है. तो वहां से मेरी ना खोज एक्चुअली शुरू हुई ढूंढना, क्योंकि वो दिमाग में आ तो गया था कि इसका आंसर ढूंढना है कि वो कहाँ से आया. और आज इतने सालों के बाद मुझे रियलाइज होता है कि उस सवाल का कोई आंसर ही नहीं है. क्यों? क्योंकि फेथ में लॉजिक नहीं होता है. या तो आपका फेथ है या आपका फेथ नहीं है. करेक्ट. या तो आप पत्थर में भी भगवान देख लोगे या आपको भगवान में भी पत्थर ही दिखेगा. You know what I mean? So answer to that question जो 13 साल के बच्चे को मैं आज देना चाहूंगा वो ये है कि अगर तू परमेश्वर पे विश्वास करता है तो ये सवाल मत कर, क्योंकि विश्वास के आगे तो सब कुछ है. Yeah, मतलब I get it. I'm like, of course, मतलब faith has such a power on you. Yeah. It's a belief system for people. और जैसे हमने बात करी fear of unknown की, ये भी तो एक unknown ही है ना, मतलब the uncontrollables in your life. Absolutely. You don't know whether there is a God or not. Nobody knows for sure. It's our faith, isn't it? And also let me, this is probably the first time ever I'm saying this on a podcast. Okay, because मैं personal चीजें ज़्यादा reveal नहीं करता है. I like to remain like an enigma. But ये पहली दफा मैं किसी podcast पे बोल रहा हूँ. मेरा इतना, I was crazy about different color eyes, and I still am, and I am crazy about different blood groups. Okay, I am not lying to you, Adi. I started manifesting कि मेरी आंखें अलग कलर की हो जाए और मेरा ब्लड ग्रुप यूनिक हो. सो आई ऑलवेज वांटेड डिफरेंट कलर आईज. आई ऑलवेज वांटेड डिफरेंट ब्लड ग्रुप. पर मेरे मॉम एंड डैड जो थे उनका ना सेट ब्लड ग्रुप है, और वो जो सेट ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं वो एक सेट ब्लड ग्रुप के बच्चे ही पैदा कर सकते हैं. राइट, दैट्स व्हाट साइंस टेल्स अस. मेरे जो मॉम एंड डैड है उनका जो ब्लड ग्रुप है उसमें ओ पॉजिटिव कहीं नहीं होता है. मैं बैठा हूं आपके सामने ओ पॉजिटिव. I wanted it. I manifested it and I got it. You manifested it, but once you were born, you already have a blood type, right? Yes. How do you manifest? So are you saying that आपका blood group change हो गया? That's not possible. I don't know how to answer that question क्योंकि पहले कभी कराया ही नहीं था. जब पहली दफा कराया तो वो आफ्टर मैनिफेस्टेशन था तो मुझे दिखा कि वो पॉजिटिव है. So it's a type anomaly. हाँ. In a way. Yeah, it's like a loophole. I don't know how that happens. I have a logic to it. Okay, I'll come back to it. Different color eyes की बात कर रहा हूँ मैं. There are so many. So I am perhaps India's only male witch who has a traditional coven. I have an entire coven. There are people in it. All the witches, we gather together, we celebrate together, we do rituals together and everything. When I do rituals, you can ask any of the coven members and any of my students.
the color of my eyes changed. When you do those rituals? Yes, they become yellow, they become blue, they become red. ये अलग-अलग colors लोगों को दिखते हैं. Some people have photographs of my eyes colors changing. I know you come from family of witches, right? But कभी आपकी family में किसी को इस बात का डर नहीं लगा या कुछ ने किसी मेडिकल कंसल्टेशन नहीं करी कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? I know you started कवन तो अब बना है, but हाँ. maybe it might have signs होंगे ना बचपन से कुछ ना कुछ. नहीं थे. अच्छा. I think it grew with the kind of practice I had. Okay. मेरी practice बढ़ी तो ये signs manifest होने शुरू हो गए. Let me now circle back to the blood group thing. Okay. So we were talking about how I manifested the change of blood group. पहले कभी मैंने कराया ही नहीं था अपना blood group check. जब जरूरत पड़ी तब कराया तो पता चला कि ये है और वो manifestation के बाद हुआ. मॉम एंड डैड का जो सेट ब्लड ग्रुप है ना उसमें O पॉजिटिव के बच्चे नहीं आते हैं. Is it AB negative versus plus AB negative? It's a theirs blood group, right? I think it's I'm not sure. Okay. So मतलब कैसे हो गया ना आप को बताओ. So what I'm trying to say is if you have faith, so I had faith in my manifestations. That is what worked. But okay, I get your point now. Of course, it's a belief system manifested, never tested before, and you got tested, and maybe because your faith, it makes you see that in that light, right? Yeah. कि हाँ, okay, O positive हो गया. By the way, high five, I am also O positive. Okay, so going back to the topic, right? What we have for today, right? And it's a myth. It's an enigma, like you said, like how you are as a person. इस चीज को समझना कुछ लोगों के तो परे के बाहर है, मुझे ऐसा लगता है, और कुछ लोग इतना भयभीत हैं उससे कि वो उसके आसपास भी नहीं मंडराना चाहते. करेक्ट. तो हाउ डू वी ब्रेक दैट वॉल? ठीक है, मतलब कैसे हम एक इसको, आजकल सब कुछ कॉमन हो गया, आजकल सब सोसाइटी में एक्सेप्टेंस इतनी बढ़ गई है हर चीज को लेके, मतलब you can choose your own religion, you can choose your own god, you can create your own god, as a matter of fact, right? Correct. But still एक डर है. Sci-fi movies देख लो, उसमें भी आपको they show you the witchcrafts and all that stuff. Right? या आप ट्रेडिशनल डिज्नी मूवीज देख लो, उसके अंदर भी है. आप कॉन्जरिंग की बात कर लो, उसके अंदर अलग आपको एक सिस्टम दिखाया जाता है. डॉल्स, वूडू डॉल्स एंड एवरीथिंग. सो मुझे इसके बारे में आप बताओ कि हाउ ट्रू इट इज इट पॉसिबल जो वूडू डॉल वाला कॉन्सेप्ट है? मुझे लगता है कि मुझे बचपन से सिखाया गया कि इट वर्क्स. आप वैसे पिन मारेंगे ना, यू विल गेट व्हाटएवर योर बॉडी पार्ट विल नॉट वर्क और व्हाटएवर शिट लाइक दैट. बट सच क्या है इसका? असली सच क्या है? बना देते तुम्हारी वुडू डॉल. ऐसे नहीं होता है अडी. इट इज नॉट लाइक दैट. होता है लेकिन ये नहीं होता है. Okay. Let's say for example somebody comes to me and says आप XYZ बीमारी है, उसकी healing ritual आप कर दीजिए, and I decide that I want to do a voodoo ritual. First of all, voodoo is not easy. It is a very very elaborative ritual. उसमें एक पार्ट है कि आप पपेट मैजिक करते हो या आप एफिजी बनाते हो या डॉल बनाते हो. वो डॉल के अंदर उस इंसान का डीएनए जाता है, उसके बाल, नेल्स, हर्ब्स जाती हैं, सो सारी. अब हम हीलिंग कर रहे हैं तो हीलिंग से रिलेटेड हर्ब्स जाएगी, उसका नेम पेपर जाएगा, फोटो जाएगी, ये सारी चीज़ें जाएंगी. एंड देन आई विल वर्क विद द स्पिरिट्स ऑफ वुडू, जिनके हम लोवा बोलते हैं, उनके साथ करेंगे, उनको कॉन्जर करेंगे, उनको बुलाएंगे. फिर जब वो आएंगे तब हम उनसे कहेंगे कि ये वो डॉल, ये वो नहीं है, ये वो इंसान है. And our faith says, our practice says that whatever I'm going to do to the doll will happen to that person. So I'm going to give him healing. देखो मैंने हमेशा बोला है और हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, मैं लोग शायद अब बोर भी हो जाएंगे सुन के, लेकिन मैं कभी बोलना ये बंद नहीं करूंगा. दैट मैजिक इज मैजिक. मैजिक हैज नो कलर. वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, पिंक मैजिक, ग्रे मैजिक नहीं होता. मैजिक मैजिक होता है, प्रैक्टिशनर उसको कलर देता है. या मैं ये हूँ कि मैं ही हूँ वो इंसान कि मैं अगर पिंक डॉल बना करके किसी के लव रिलेशनशिप पे काम कर रहा हूँ, तो मैं ही हूँ वो इंसान कि ब्लैक डॉल बना के किसी के लिए गलत चीज कर रहा हूँ. So there's a truth behind it, right? But Yes, it is possible. It is possible. And people do that. And people do that. You will be surprised. You'll have a lifetime of experience if you go through my DMs and see what people write and what they want. They can go to any length, Adi, these days. I'll not justify that behavior, the reach or the ask, right? But I think desperation makes you do silly things, right? Yes, that. And I think people don't have patience now.
Correct. They You just want want expedited. देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी लकीर इतनी बड़ी है ना और दूसरे की लकीर इतनी बड़ी है, तो आप अपनी लकीर बड़ी करो ना, उसकी मिटा के तूने अपनी बड़ी क्यों करनी है? तू खुद मेहनत कर ले मेरे भाई। Correct. लेकिन दीदी को मेहनत नहीं करनी ना, Hmm. दीदी को दूसरे की लकीर मिटानी है। Correct. सर इसका कुछ आप कर दो, इसने बड़ा दुखी कर रखा है, इसको क्या कर दूं मैं? हम्म। क्या कर दूं मैं ऐसा? माना मैं थोड़े भगवान के क्लोज हूँ, वो शायद मेरी ज्यादा सुनता है आपसे, क्योंकि आपकी अनजस्टिफाइड डिमांड्स तो वो सुन नहीं रहे हैं। सो व्हाट मेक्स यू थिंक कि वो मेरी सुन लेंगे? और अगर सुन भी लेंगे तो यू कैन नॉट पे मी इनफ टू डू हार्म, क्योंकि जिंदगी मौत देने वाला मैं नहीं हूँ, वो ऊपर वाला है, पहली Correct. चीज। और तीसरी चीज, बहुत काम होता है। You know, हाँ. and also just because you have come to me and you are saying कि ये इंसान खराब है, इसका कुछ आप खराब कर दो, मैं कैसे मानूं? हाउ? इतनी दिव्य शक्ति नहीं आ रही है किसी भी हीलर के अंदर इस दुनिया में कि बैठे बैठे उसको पता चल रहा है कि हाँ ये सच बोल रहा है, तो और फिर लोग बात करते हैं कर्मा की। आपको कैसे पता कि वो सच बोल रहा है? लेकिन आपने तो उसका वर्ड ऑफ माउथ पे बात लेकर के कर दिया ना, Correct. तो फिर कह रहे हो कि कर्मा खराब नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाउ? गारंटी कैसे ले रहे हो आप? हीलिंग इज लाइक ऑपरेटिंग अ बॉडी, व्हेन यू ओपन इट यू फाइंड 10,000 फॉल्स। Correct. आपने कौन सी ठीक करनी है, कौन सी ठीक नहीं करनी है, ये आपको उसी समय डिसीजन लेना पड़ता है। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं आप ये कर दोगे, वो कर दोगे तो गारंटी हो जाएगी। मैं डॉक्टर आपको गारंटी देता है? But then जितने भी लोग और I will not, like you said, magic है, but it's commonly termed as black magic, correct? Not Layman's term, yes. in layman's term, Okay. from the uneducated or a half-educated, semi-educated section of the हम्म people, right? हम्म तो अगर जैसे एक एक औरत तो है, ब्लैक मैजिक आपने जोड़ दिया, वो डर तो बना ही दिया है, हम्म आपको डर लग रहा है, right? हम्म And then while you do it, you don't do it on the harming side, you do it on the healing side, right? But ये करते समय do you also suffer in the entire process to heal somebody? जो ब्लैक मैजिक करते हैं शायद वो लोग भी सफर करते होंगे, कुछ ना कुछ तो यार, कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर भी इम्पैक्ट आता होगा ना, when you are doing it, आप किसी एनर्जी को अपने अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हो, possess कर अगर वुडू कर रहे वुडू तो कर रहे हो, या राइट व्हाटएवर फॉर्म ऑफ यू डूइंग मैजिक, राइट आप किसी न किसी एक सुपरनैचुरल पावर से कनेक्ट करते हो, एंड देन यू यूज योरसेल्फ एज अ मीडियम और अ सोर्स और अ conduit. conduit, right? And then you transform that energy into something else for good Correct. or bad. That's Correct. my understanding, right? Correct. But during the process, you're also doing self harm to yourself, right? आप Yes. भी तो अपने आप को एक बहुत ही अलग पता नहीं कौन सी alley से लेके जा रहे हो. I'm going to use dark alley. Yeah, yeah. Yeah. No, but you're absolutely right. Healing is not easy. Every time I do a healing ritual for somebody, it takes a chunk off of me. It does. Have you not seen the Conjuring movie? Yeah, yeah. See, उसमें जो डिपिक्शन दिखाया है 99% रियल है। I have closely been associated with Ed and Lorraine Warren. You know them in person or I don't know them in person, but they used to be when she was alive. They used to be many many years ago, or in the witch terminology, many moons ago. When she was alive, there was a Facebook group and she used to come and visit for like once a month or so, and we used to talk to her, and she used to teach her a lot of things and everything. Her faith and his faith was a very Christian prominent faith, and that is how they worked on it. So is mine. So I was able to understand it कि ये चीज ऐसे होती है वैसे होती है, तो वो लॉजिक मुझे वहां से मिला है। सो वो मूवीज में, नाउ आंसरिंग योर क्वेश्चन, वो मूवीज में क्या होती है दैट एवरी टाइम आई डू समथिंग इट टेक्स अ चंक ऑफ ऑफ मी, व्हिच इज सो ट्रू, इट डज। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ हीलिंग मोडालिटी कॉल्ड लामा फेरा। बहुत प्रोमिनेंट है, सारी दुनिया को पता है, बुद्धिस्ट हीलिंग मोडालिटी। इट इज अ फैंटास्टिक हीलिंग मोडालिटी। ओके, आई प्रैक्टिस, लॉट ऑफ माय स्टूडेंट प्रैक्टिस इट एंड एवरीथिंग। उसमें हम क्लियरली लोगों को बोल देते हैं दैट इफ यू आर कमिंग टू अस फॉर कैंसर, वी विल नॉट डू, okay? बिकॉज कैंसर इज अ डीएनए लेवल डिजीज एंड इट जंप्स। Oh, okay. तो वो प्रैक्टिशनर के ऊपर आता है। Oh. देयर इज नो अमाउंट ऑफ मनी यू कैन पे मी दैट आई कैन टेक दैट रिस्क। But then in first place, right? Okay, जैसे मैं ऐसे सोचता हूँ, मैंने किसी को बोला नहीं आउट लाउड, पॉडकास्ट में पहली बार आपके सामने ही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत गुरु होते हैं और जो आपको ये मार्ग दिखाते हैं या फिर बोलते हैं ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, एंड
खुद का बटा गोल है, ठीक है। एंड डज दिस हैपेंस विद यू आल्सो? Yes, absolutely. You know what? बहुत सारे healers are. There is one in particular that I will not take the name, but I was just randomly scrolling through Instagram and I saw uh, that there was this person who was talking about prosperity and abundance, and उनके पीछे उनके पर्दे फटे। तो मेरी नजर जैसे ही उस पे गई, वो वहीं रुक गई, उससे फिर आगे बढ़ी ही नहीं। तो आपने अपनी प्रॉस्पेरिटी तो करी नहीं और चले हैं आप दुनिया का बेड़ा उठाने के लिए। यू नो व्हाट आई मीन? I get it, I get it. So there is a video that I did. I think it is on my YouTube channel. मैंने उसके ऊपर डाला है जिसमें I have spoken about how do you identify a spiritual teacher. Okay. आप हर किसी को गुरु नहीं बना सकते क्योंकि सेल्फ प्रोक्लेम गुरुज तो बहुत है। यू नो, आजकल ज्ञान सबके पास है। सबके पास ज्ञान है, आप बैठो तो सही। नहीं, सबसे बड़े ज्ञानी बाबा तुम्हारे गूगल है। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, आप बैठो किसी के पास, कोई कोई भी उठा करके आपको ज्ञान देना शुरू करे। रिक्शे वाले के पास भी बतेरा ज्ञान होता है। करेक्ट। ऑलराइट, सो वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन अ रेफरेंस अभी एक मूवी का, जैसे मैंने आपको कॉन्जरिंग बताया, एरिन, राइट, लॉरेन का, एंड वी हैव स्पोकन टू देम। लॉरेन, you have interacted with her when she was alive, right, through our community and everything. Similarly, I want to bring up a connection to, okay, but I'm referring to a lot of horror movies just because I want to understand, and those movies are designed around Christianity. थोड़ा सा मतलब Christian church versus Antichrist and everything, right? करेक्ट। है ना? So first is the paranormal activity, which is not about church and everything. तो उस मूवी के अंदर वो था कि मतलब एक कमरे में शूट कर लिया और वो कोई चादर खींच रहा है, कोई बेड से उछल रहा है, whatever. So what do you think, like, you know, is it, does that happen? It happens, but उतने लेवल पे नहीं होता है, honestly speaking. And first of all, people have to understand the difference that this is not spirit. वो spirit नहीं, it's an entity. It is called a poltergeist. Okay. वो poltergeist कैसे भी pronounce कर लीजिए आप, वो है वो। So there is a huge difference. लेकिन वो, I think that movie is a lot of bull because they put a lot of masala in it. And of course, you know, to appeal to the masses, you have to. Yeah. बट उतने लेवल पे नहीं होता है लेकिन उतने लेवल पे नहीं होता है। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी मूवी जो है, बट या आई मीन, बट देन यू नो, आर्ट इमिटेट्स लाइफ, वाइस वर्सा, वो तो है सीन, जिंदगी में होता है तो ही मूवीज बनती हैं। तो कहीं हद तक सच है। लाइक कॉन्जरिंग इज बेस्ड ऑन हर फाइल्स एंड देयर फाइल्स। पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी आई एम श्योर किसी न किसी के एक्सपीरियंस पे ही होगी। एक मूवी होती थी एग्जॉर्सिस्ट, Yeah. बहुत पहले, यू नो, The lady used to walk. वो मुंडी घुमारी, Yeah. एवरीथिंग लाइक दैट। एक्सोर्सिज्म होता है लेकिन वैसे नहीं होता है, मतलब देयर इज नो ग्रीन वॉमिट कमिंग आउट ऑफ, you know, somebody's mouth, and you know, the priest is, it's But not have like you that. have you seen in your personal life, if you are comfortable sharing that experience, because क्योंकि जो movies दिखाते हैं, you know, your bones are cracking, आप your voice is changing, you can speak whatever language you don't even know, आपने कभी सुनी भी नहीं है, कहीं पढ़ी भी नहीं है, and then suddenly a priest enters and he starts saying some verses from a Bible, and then just sprinkle some holy water and blah blah blah. Sorry, I'm not trying Yeah. to undermine this, but have you seen something of this like happening? I have done it. Oh my God, really? Yeah. Are you comfortable sharing with people? Maybe. Yeah, I think I haven't spoken in any of the podcasts about this also, but I think people deserve to know, इसलिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक्चुअली मेरी स्पिरिचुअलिटी का पाथ शुरू ही इस चीज से किया था, फ्रॉम एक्सोर्सिज्म। Okay. That's how I started because I was being trained to become a priest, okay, and I'm a trained priest. I've done it. I'm a reverend. मतलब शादी वगैरह करा सकता हूँ मैं, तुम्हें जरूरत है तो। Coincidentally, I'm not married yet. Okay, see, so that's how it all started and everything, and bones cracking, yes. Change of voice, yes. मैंने एक साथ एक देखो, there is you know, science also agrees with this कि आपके vocal cords एक साथ 2 वॉइस जनरेट कर सकते हैं लेकिन 7-8 वॉइसेस नहीं कर सकते। So I've faced that. 99% ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एंड एवरी
almost every other month, I always put it on my Facebook and Instagram that I have an open couch policy. I am sitting on the couch. You will have coffee, tea, whatever you want. Come, let's talk. मेंटल हेल्थ को मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ और अगर आप मेरी बायो भी देखें तो इट्स अ स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट बिकॉज माय बेसिस माय स्टडीज इज इन साइकोलॉजी सो दैट्स हाउ आई रिलेट इसलिए मैंने लॉजिक ढूंढना शुरू किया सारी चीज़ों में बेसिकली सो एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको बड़े गजब का हम लोग कहीं पे थे और किसी ने उन दिनों हम लोग अलग अलग जगह पे जा करके गैदरिंग्स करते थे और वहाँ पे लोग लेकर के आते थे क्योंकि अपेरेंटली ये खबर फैल गई थी कि ये एक लड़का है जवान ये आता है तो इस तरीके की ऊपरी हवाएं बोलते हैं ना लोग हाँ हाँ हाँ, ये निकाल देता है और हम्म, निकल जाती हैं और ये हो जाता है और वो हो जाता है तो जब मैं वहाँ पे गया कॉन्जरिंग आने के करीबन मैं आपको 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ okay. I was a young chap. I would have been I think 21, 22, and now I'm almost 50. आप बस आपने जो ये आपने खुद देखा है इट स्टार्टेड बिफोर कॉन्जरिंग केम इनटू 20-25 साल पहले Yeah. एक्सॉर्सिज्म के अंदर So it started before this movie Conjuring came out. कम से कम 20 एक साल पहले की बात है ये मुझे किसी ने बुलाया कि आप हमारे यहाँ आ जाइए और ऐसे है और एक लड़का है उसके ऊपर कुछ हवा है और आप देख लीजिए कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है अरे आई शिट यू नॉट व्हेन आई वेंट टू देयर हाउस वो सब लोग बाहर बैठे हुए थे अंदर एक कमरा था उस कमरे में ना लाइट नहीं थी एक बल्ब जल रहा था वो बल्ब के नीचे उन्होंने उस लड़के को कुर्सी पे बिठा रखा था रस्सियां बांध के ओह माय गॉड ओके और उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए थे और ये लड़का वो वहां पे बैठा हुआ है और झूम रहा है हिल रहा है सब कुछ हो रहा है आपको कॉन्जरिंग मूवी 1 का याद आ रहा है सीन कुर्सी वाला बिल्कुल वैसा ही तो मैंने देख करके मैंने कहा भाई मतलब क्या है ये तो मैंने पहले तो सबको बोला मैंने कहा आप लोग तो सब बाहर जाइए कोई तमाशा नहीं चल रहा है लेट मी ट्राई एंड अंडरस्टैंड सो पीपल लाइक मी हु डू अ लॉट ऑफ एक्सोसिज्म देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट वी आस्क द पोजेस्ड वो जो आंसर्स होते हैं ना जब येस एंड नो में आते हैं और कुछ हम बुलवाते हैं उससे हमें काफी हद तक पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है देखो मैं आपको बता रहा हूँ एडी 99% साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है बट दैट 1% इज द रियल डील वो जो 1% है ना वो हिला देता है आपको जब मैं वहां गया मैंने उस लड़के से बात करी एंड इट केम आउट टू बी नथिंग ही वाज इन लव विद अ गर्ल और उसके माँ बाप रेडी नहीं हो रहे थे और अल्टीमेटली आई understood the problem and then I realized कि कोई ऊपरी हवा नहीं है so I made him understand कि that you know what तेरे behavior से तेरे माँ बाप को कितनी तकलीफ हो रही है तू समझ रहा है ठीक है so he was doing it himself Yeah. there's no he was not possessed no he or she I'm like no he wasn't he's an actor yeah oh my god हाँ फिल्म फेयर दे तो इतनी इतनी बढ़िया एक्टिंग करी थी उसने oh my god okay so then I spoke to him and I said and now he's married to the same woman and has 2 kids you know I of course मैंने उसे माँ बाप को भी समझाया कि ये है वो है फलाए ढिमका आप करा दो शादी कोई दिक्कत नहीं है and then everything went well cut to 2 months after that I was sitting at somebody's house and we were just talking करीबन 2:30-3 बजे की बात है एसीज नहीं होते थे उस जमाने में कूलर होते थे सबके पास तो कूलर ना हिलने लगा तो हमें लगा शायद अर्थक्वेक आया है तो हम लोग सब भाग के और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे ही थे सब लोग नीचे आ गए वी वर अबाउट 7-8 पीपल बाहर आके वी रियलाइज दैट वी आर द ओनली वंस आउटसाइड कोई और आया ही नहीं हमने कहा यार भूकंप आ रहा है लोग क्यों नहीं आ रहे हैं हम लोग ऊपर चले गए दूसरी बार फिर से वही हुआ कूलर हिला हम लोग फिर चले गए सो ये बात हो रही है जनकपुरी की दिल्ली में एक जगह है जनकपुरी I know हाँ वहाँ पे बात हो रही है जे कॉलोनी की वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन होती है ना तो आपने देखा एक सेट तरीके से गवर्नमेंट अकोमोडेशन बनती है कि ऐसे चढ़ती है सीढ़ी और फिर ऐसे घूमती है इधर एक का मकान है इधर एक का मकान है और यही सीढ़ी ऊपर like चली ऐसे घूमती जाएगी and then Correct. go to houses parallel करेक्ट ऐसे आमने सामने मकान होते हैं तो अब सबके जाली के दरवाजे होते हैं और अंदर फिर एक लकड़ी का दरवाजा होता है जब आप अपने घर के लकड़ी के जाली के दरवाजे पे खड़े होते हो तो आपका जो विजन है ना वो सामने का घर दिख रहा है थोड़ी सी नीचे जाने वाली सीढ़ी दिख रही है और थोड़ी सी ऊपर वाली बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखता आपको करेक्ट हमने वो घर का दरवाजा लकड़ी का खोल दिया जाली का दरवाजा बंद था थोड़ी देर के बाद घंटी बजी हमने देखा कोई नहीं था हमने कहा यार रात को 2:30 बजे कौन बच्चा ये प्रैंक कर रहा है दूसरी बार फिर घंटी बजी फिर हमने देखा कोई कुछ नहीं था फिर जब तीसरी बार घंटी बजी ना तो मैंने सबको रो दिया मैंने कहा तुम लोग शांत हो जाओ जरा पीछे हो जाओ मुझे देखना तो क्या है ये देन आई वेंट एंड आई स्टूड एट द डोर एंड ऑल आई सेड वाज दिस इज माय हाउस
गो अवे नाउ। उसके बाद घंटी नहीं बजी और फिर सब कुछ शांत हो गया, हम लोग सो गए। अगले दिन हमें बुलाया किसी ने, हम उनके घर गए थे, सेम केस था, वहाँ पे पोजेशन था। उन्होंने बोला कि कुछ ऊपरी हवा है, पोजेशन केस एंड एवरीथिंग, सो वी वेंट देयर एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू दिस गर्ल, ओके, 18 साल की लड़की बेचारी। And then I said certain things and she said certain things and then I said कि कहाँ से आ गए घूमते फिरते इसके अंदर। You said it So out of nowhere. yeah, I said कहाँ से आ गए घूमते फिरते इसके अंदर। तो उसने कहा कि मैं तो कल से तेरा ध्यान ले रहा हूँ, तू दे नहीं रहा। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे मैंने कूलर खड़खड़ाया तूने नहीं सुना, मैंने 3 दफा घंटे बजाई तूने नहीं सुना, फिर तूने कहा मेरा घर जाओ यहाँ से। So I'm telling you that 1% is the real deal. 99% psychological disorder है। It took us 3 sittings to make sure that the girl gets rid of that entity. It But was very, very draining. I'm like, I And I understand. couldn't walk after that for almost a week. It was so tiring. So, okay, so in every religion, ठीक है, मतलब, so you follow Christianity, Hinduism में अलग, I don't, I follow every religion. So, okay, I'm very eclectic in nature. I like to pick and choose. okay. So I would say ghost, bhoot, pishach, whatever, it's a universal term in a different language has a different term for it. Right? A demon is demon. Right. Lucifer बोल लो या कुछ बोल लो, whatever, right? So मेरा आपसे ये समझना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि जैसे for example now you do an exorcism, there's a different exercise, it's a practice, it has to be done properly, you need to be church authorized maybe also. Is that true? That for you to perform this kind of a service? Not really. Not really. It depends. Okay, they show it in the movies. That's why my knowledge. See, they show Catholic priests. Yeah. We are not Catholics. So वो यहाँ पे नहीं होता है। So okay, whatever the fear factor is there, वो तो है, right? And इसमें आपने जो बोला 1% सच्चाई भी है और 99% is a psychological disorder or maybe a manifestation of just to get your things done, just to बेवकूफ बना। हाँ। मूवी देख ली बच्चे ने उसको ऐड करना शुरू करा और ये बेवकूफ बना दे, right? Now it's very जनरली जब हम छोटे होते थे या अभी भी जो कॉलेज गोइंग किड्स होंगे या whatever, अब there's a lot of information there out there, right? एक घोस्टबस्टर करके मूवी आपने सुनी? People go to places and they're trying to sense this noises, आवाजें आ रही हैं इस घर के अंदर, ये हो रहा है through scientific equipments and everything they do it. So अब वो चीजें भी चलती हैं, correct? मतलब घोस्टबस्टर्स नहीं बोलूँ, घोस्टबस्टर was it was like a spoof, maybe I'm not sure, but ऐसे ही कुछ मतलब there are movies, right, where they go to a haunted site, वहाँ जाके research करते हैं, Right. they try to observe the activity and everything. So have you been to any such places? Have you do you think first of all what they're showing on the screen it's actually possible? I don't know. Okay. Honestly, I wouldn't know how to answer that because I don't think that an equipment can trace that kind of energy. Okay. I am a psychic. आप देखो ये जितने भी टीवी shows हैं या movies हैं जो भी हैं, they will have their equipment but they will also have a psychic. Correct. तो अगर आपके equipments काम करें तो आप psychic क्यों लेकर के आए हो? Presence तो psychic बता रहा है ना आपको। Correct. So that is my role. So जिस तरीके से मैं फील करता हूँ, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ उस एंटिटी को, उस तरीके से आपका इक्विपमेंट शायद काम करेगा, शायद काम करे नहीं करेगा। आई हैव नेवर वर्कड विद दोज इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज़ मेरा फेथ नहीं है, शायद इसलिए, शायद वो काम करते हैं। आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, आई एम श्योर करते होंगे। बट आई हैव नेवर मे बी कभी अगर मौका मिला और किसी ने कहा कि हाँ करते हैं एक शो और आप ऐसे करो तो देन आई विल do it, and if it works I will tell people it works, if it doesn't work I will tell people it doesn't work. I get it. So sometimes जैसे क्या होता है लोगों ने बोला कि मैंने भूत देखा, correct, maybe 90% again वो झूठ होगा जो भी होगा, we're not going there, ठीक है, let's say somebody has actually sensed some sort of spirit, right, मैंने भूत देखा और आधी बार हम शायद उसको डेजा वू बोल के छोड़ देते शायद, है कि I might be misremembering things, है ना? देखो भूत पिशाच ये देखा, भूत था, ये था, वो था, this is like a common term for one thing, right? Deja vu is entirely different. Of course, yeah. I'm sorry. Deja vu is the feeling that you get that हाँ ये पहले भी हुआ है. So that is more in tandem with the parallel universe, correct, concept. So now, so when it happens, right? Okay, जब आपने शायद एक feeling observe करी,
which sends a shivers down your spine, हम्म, right? और वो आपको एक डर से भी आ सकती है। हम्म, आप एक क्लोज गाड़ी आपके पास से निकल जाए, वो भी हम्म, sends a shivers down your हम्म, हम्म, spine, right? और समटाइम्स आप कहीं अकेले होते हो, एंड 90% ये होता है जब आप अकेले होते हो। हम्म, मेरे को नहीं लगता कि जब आस पास 2-3 लोग होते हैं शायद ये नहीं होता। होता होगा, मुझे पता, आप यू आर एन एक्सपर्ट इनटू इट, यू हम्म, माइट बी एबल टू थ्रो मोर लाइट। हम्म। पर जनरली मैंने देखा है कि ऐसे वाकयाएँ आपके साथ ना हमेशा जब आप अकेले होते हो तभी होते हैं, पता नहीं क्यों? मतलब डर होता है और देखिए डर है, हुँ, और डर आपको वो दिखाता है जो आप देखना देखना चाहते चाहते हो। हो। हाँ। सिमिलरली अंधेरा, हुँ, अंधेरा आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। आप जंगल में कभी अंधेरे में जाओ और ताड़ना शुरू कर दो, हुँ। घूरना शुरू कर दो, यू स्टार्ट सीइंग समथिंग। हाँ, यू विल, अरे वहां कोई खड़ा है, हुँ, वो कुछ फिगर लग रही है, कुछ है तो नहीं, हाँ। कुछ है तो नहीं, हुँ, यू नो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। लेट मी, मुझे एक बड़ा पुराना किस्सा याद आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा कि अकेले होती हैं या साथ होते हैं लोग, तो नहीं होते। हमारे घर के पास एक प्रेयर मीटिंग होती थी। आई हैड रिसेंटली लॉस्ट माई वन ऑफ माई फूफा जीज, ओके, तो उनकी डेथ हुई थी, एंड आई कुडंट से गुड बाय टू हिम बिकॉज आई वाज सो हर्ट इमोशनली, और मैं इतना रो रहा था कि लोगों ने मुझको, सो इन क्रिश्चियंस व्हाट हैपेंस इज दैट वी कीप द बॉडी wherein you can come and say final goodbye, and you can kiss the body if you want to, and you know, say your prayers or your message or whatever. मैं वो नहीं कर पाया, इन लोगों ने मुझे नहीं करने दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। एंड फिर वो चले गए, बरियल हो गया, सब कुछ हो गया। उनके 6-7 महीने के बाद मैं और मेरी बहन, हम दोनों प्रेयर मीटिंग से वापस आ रहे थे, एंड आई हर्ड हिज वॉइस कॉलिंग मी। तो मैंने पीछे देखा, और जितने दूर आप बैठे इतनी ही दूर थे वो, और मैंने भी देखा, मेरी बहन ने भी एक साथ देखा। अ, यहाँ से लेके यहाँ तक तो प्रॉपर थे, जैसे इंसान होते हैं वैसे, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। नीचे आपको याद है पुराने ज़माने की टीवी में ऐसे वेव्स आती थी? करेक्ट, हाँ, हाँ। वो वैसे था वेवी, हुँ, एंड देन ही वाज़ वेविंग एंड देन ही सेड कम हियर। सो आई लुक्ड एट माय सिस्टर एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड कि फूफा जी हैं, चलो चलते हैं। और हमने थोड़ा-सा कदम उनकी तरफ बढ़ाया, और आई थिंक 1 कदम 2 कदम के बाद ही हमें रियलाइज़ हुआ कि ये तो है ही नहीं, हुँ, ही इज़ नो मोर। हुँ, एंड देन शी लुक्ड एट मी एंड आई लुक्ड एट हिम एंड देन वी रैन बिकॉज़ वी वर किड्स। हुँ, हम डर गए, भाग गए। जो तो जहाँ के मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ ना, वो घर ऐसे सेटअप था कि, तो वो जो स्टाफ क्वार्टर्स है ना, वो स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। तो आप ऐसे जाओगे और ऐसे जाओगे, तो आपका व्यू जो है ना, वो इधर भी है और इधर भी है। हुँ। सो ही वाज़ हियर, वी वर हियर, एंड देन आवर हाउस वाज़ हियर। तो हम लोग ऐसे भागते हुए आ रहे हैं, और जब तक हम अपने घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच गए थे, ही वाज़ स्टिल देयर। तो मैंने अगर अकेले देखा होता, तो लोग कहते कि झूठ बोल रहा है। मेरी सिस्टर ने भी देखा। अब या तो हमारा कंबाइंड झूठ है, या दोनों को दिखा। हुँ, यू नो व्हाट आई मीन? करेक्ट। और हम, आई थिंक आई वाज़ अबाउट 11 और 12, और वो और भी छोटी थी। मुझे भी आज तक वैसा का वर्बेटम याद है, और उसको भी ऐसे ही याद है। तो अगर ख़याली पुलाव होता और हमारे बचपन की कहानी होती, तो हम भूल चुके होते एडी। हाँ, और मे बी आप जिस बंदे को बताते हर बार वर्ज़न बदल जाता, हाँ, है ना? लेकिन बिकॉज़ सेम टू है। कीप अप विद द एक और टाइम्स। मैं आपको किस्सा बताता हूँ। 10th क्लास के एग्ज़ाम दे रहा था मैं, हुँ, एंड दिस इज़ लाइक मैनी मैनी इयर्स अगो, ओके? 10वीं का एग्ज़ाम मैंने देना था। हमारा घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था, ओके? बिकॉज़ देयर वाज़ सम फंक्शन इज़ ऑल्सो, और मेरे एग्ज़ाम का टाइम था, प्रिपरेशन चल रही है। आपने सुना है लोग बोलते हैं कि दरवाज़े की चौखट के पास नहीं सोना चाहिए? तो मेरा बेड वहीं था। द रीज़न व्हाई पीपल से इट इज़ क्योंकि वो पोर्टल होता है, वहाँ स्पिरिट्स क्रॉस होती हैं। राइट? तो ऐसे ही चौखट के पास हमारा बेड लगा हुआ था मेरा, और वहाँ पे मैं सो रहा था। आई थिंक अगेन वही ढाई 3 बजे के, ये का टाइम फिक्स है, मेरे को ऐसा लगता है। इन्होंने ना कुछ रिज़र्व मेरे से कर क्वेश्चन रखा है। था कि ये रात को 3 साढ़े 3 बजे 2 से 5 के बीच में आई विल गिव यू द लॉजिक अ, बिहाइंड दिस। चढ़ता है, ये होता है। रिमाइंड मी, आई विल टेल यू व्हाई इट हाँ, इज़, ओके, ओके? हाँ। तो ढाई 3 बजे का टाइम था। मैं सो रहा था, मुझे हाथ पकड़ के किसी ने उठाया, ओके? और देखिए 10th की बात बता रहा हूँ मैं, 10 साल का 50 साल का हूँ मैं, 10 साल का बच्चा कितने साल का होता है, ये देखो आप, हुँ, ठीक है? एग्ज़ाम देने थे मुझे। मैंने देखा एक व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन का लंबा आदमी खड़ा है, कर्ली बाल हैं उसके, उसने व्हाइट एंड ग्रे चेक की शर्ट पहनी है, और ग्रे कलर की ट्राउज़र पहनी है। शर्ट की बटन पूरे यहाँ तक बंद है, शर्ट टक्ड इन नहीं है, और ट्राउज़र उसने पहना है कि ब्राउन कलर के उसने जूते पहने हैं। वो मेरे पलंग के पास खड़ा है और मेरा हाथ पकड़ के हिला रहा है। उसकी आँखें बंद है, लेकिन वो देख मुझे रहा है, वाओ, राइट? ही दैट्स वाज़ वेरी लुकिंग एट मी बट हिज़ आइज़ वर क्लोज्ड, हुँ, ओके?
अभी तक याद है मुझे, वर्जन चेंज नहीं हुआ है मेरा, हम्म, आप देख रहे हैं। हम्म, मैं पहले तो मेरा इमीडिएट थॉट जो था ना कि ये कौन है, मतलब इतने सारे लोग आए हुए हैं घर में, सारे रिश्तेदार, ये कौन है। एंड देन आई रियलाइज कि ये इंसान तो नहीं है। of course. द एंड आई वांटेड टू गेट अप बट आई कुडंट, मैं उठ नहीं पा रहा था, मेरा शरीर इतना भारी हो गया था। फिर थोड़ी देर में देखा मैंने, वो ऐसे पलंग के से दरवाजे से निकला, दरवाजे के बाहर हमारी मेन गेट से निकला, और हमारा मेन गेट जो था ना वो पूरा लोहे का था और ऊपर जाली थी। फिर वो मुझे दरवाजे से बाहर निकलता हुआ दिखा, एंड देन ही टर्न्ड एंड ही लुक्ड एट मी फ्रॉम आउटसाइड द डोर। नाउ मी एंड देन आई कुड गेट अप, जब वो घर से बाहर निकली चीज तब मैं उठ पाया। नाउ मी बीइंग मी, रात के 2:30 बजे दरवाजा खोल के उसके पीछे, Oh my God. और मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, और 2:30-3 बजे तक मतलब घूमा मैं वहां पे, एरिया था, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। उसके बाद आई डोंट नो बट माय कजिन्स फाउंड मी एंड देन दे गॉट मी। फिर मैंने वापस आके सबको बताया कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था, और फिर ऑफ कोर्स मॉम ने डांटा कि ऐसे कोई भी चीज आएगी तो तेरे को तो ले ही जाएगी, तू तो किसी के भी पीछे चल देगा, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, तो दिस इज द एक्सपीरियंस दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। Going back to the point of 2 से 5 बजे और whatever this रात काल और राइट, देखिए हिंदुइज्म में और भी हाँ, टाइम रहता है, जैसे गौदली का टाइम है, या होली टाइम और व्हाटएवर, आई डोंट नो द डिटेल्स बिकॉज आई डोंट प्रैक्टिस द फेथ, बट इन माय प्रैक्टिस हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं विचिंग आवर। हम्म, दैट इज द टाइम ऑफ द विच, वो हमारा टाइम है। तो हमारे रिचुअल्स जो है ना वो 12 से 3 बजे के बीच में होते हैं, 12 से 3 बजे का टाम मेरा है। so that's when your energy is at the highest. हाँ, एंड ऑल्सो इट्स क्वाइटर ना, आई कैन फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट Yeah. With the modern lifestyle and विद द everything. मॉडर्न So much लाइफ। of construction. Okay. At the same time, मेरे को आपसे ये same, sorry, I'm dragging this conversation a little longer. Because मेरे को ये भी समझना है, अब जैसे विच क्राफ्ट की हम बात करें, विचेस की बात करें, हर धर्म के अंदर मतलब let's not go religion में, like we have already established a ghost is a ghost, universal Yeah. thing, right? Now, एक ज़माने पहले, या whatever I've read or seen, witches used to be burnt into the church. Church used to be against them and they used to burn them. There's a rivalry, antichrist, atheist बोल दो या कुछ भी बोल दो. Church was very dominant, right? I'm not sure. I'm not taking a stand for church or against church. And ये सब चीजें होती थी, right? मे बी मूवीज में ऐसे पोर्ट्रे करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, जो हम थोड़ा बहुत पढ़ा इधर उधर, व्हाट एवर यू सर्च। क्या ये एक्चुअल में एक एंटी राइवलरी था, या एक सिर्फ एक दिमाग का भूत था? मैं कहूँ दिमाग का भूत। हर संडे चर्च जाता हूँ मैं, अभी तक नहीं जला, और क्या बोलूँ मैं। हाँ, So it's just the way it has been depicted. And also those witches were not really witches. I think वो Satanists ज़्यादा थे. People who believe in Satan and practice and worship Satan. You have to understand that Satan is a Christianity created concept. वो किसी और रिलीजन में नहीं है, वो Christianity में ही है। तो देखो, अंधेरा है तो रोशनी है, और शैतान है तो भगवान है ना। करेक्ट। मतलब इट्स टू साइड ऑफ अ कॉइन, राइट? Yes. यू नीड गुड एंड हाँ, evil to balance each other. सो ऐसा कुछ नहीं होता है। देर आर सो मेनी क्लाइंट्स जिनके लिए मैं संडे को चर्च जाता हूँ, एंड आई प्रे फॉर देम। जरूरी नहीं है कि मुझे 4 जड़ी बूटियां बना के पपेट्स बनाने और डॉल मैजिक करना है। आई कैन जस्ट प्रे फॉर देम। मेरी तो सुन रहा है ना, करेक्ट। शायद आपकी सुन ले। आज सुबह आई वॉज इन द होटल्स बैल्कनी एंड आई वॉज सिपिंग कॉफी, और एम्बुलेंस जा रही थी। So the view was so clear that I could see people sitting in the ambulance. It was for a second, okay, but I could make out that there are people sitting. और मेरे मुंह से निकला कि भगवान जी सब ठीक करना। The moment I said it, I realized कि ये मेरी हैबिट है। जब भी कभी एम्बुलेंस साथ से निकल जाती है ना, मेरे मुंह से हमेशा निकलता है भगवान जी सब। We need these kind of people in the world today. People who pray for each other. चाहे आप उन्हें जाने, चाहे आप उन्हें ना जाने। कितनी बार ऐसा होता है, आप किसी जरूरतमंद को अगर सड़क के ऊपर देते हैं, आप कुछ नहीं दे सकते उसके लिए, कैन यू नॉट प्रे? सिर्फ आपने यही तो बोलना है यूनिवर्स से कि इसके हालात बेहतर हो जाएं। Yeah, this also happens, you know. I mean, like generally, maybe in Hinduism, maybe this is done. Like it's done in every religion, of course. जैसे आपने बोला कि एक proper after departure एक क्या बोलते हैं उसको? There's a term for it. I forgot. In Christianity, when what I've seen, like you do a service, right, where you can come and
say goodbyes to the Yeah, body. funeral. Yeah, funeral, sorry, yeah. Hmm. You do that, right? Similarly, जैसे जो आपने बोला अच्छी बात बोलना, right? Similarly, जैसे आप हम जिसमें जो मैंने देखा और मैंने जो करता हूँ शायद मे बी whenever there's a dead body is being passed, so we always Yeah, reverence the देते हैं, हम hand, yeah, इज्जत देते हैं. कि राम राम and you know whatever you Correct. what you say, यार कि शांति मिले, right? हाँ. Now I want to understand like generally अब हर religion के अंदर Christianity में you bury the body. Let's say Hinduism में you burn the body, Burn. right? Yeah. And both the religions have their own beliefs about the spirit leaving the body and going into the afterlife or whatever if it exists. I'm not sure. It's a different concept and debate altogether, right? That's a different podcast. Different podcast maybe, yeah. But अब जब spirit निकल गया है and the good spirits, bad spirits maybe, you know, होगा ही of course because जो शैतान बोल रहे हो कुछ बोल रहे हो जो भी है. अब ये spirits क्यों मंडरा रही है? मतलब why are they so demented? It's their living hell after death. Interesting question. Great. So we have established कि चाहे आप जलाओ, चाहे आप दबाओ, spirit तो निकल के ऊपर आएगी. Correct? But that's my thought. Or maybe it goes underground. No, actually मुझे ऐसा लगता है Christianity ये कहती है, Hinduism I don't know. Christianity ये कहती है कि पहले आपका judgment होता है कि अच्छे हो बुरे हो क्या हो, फिर आपको डिसाइड होता है कि हेवन जाओगे या हेल जाओगे. वुडू कहता है कि when you are buried, you will be buried like a Christian person, and then Baron Samedi will come in, and then he's going to dig your grave out and take your soul. Okay. Egyptian Roman में Anubis है, Santa Morte का concept ही अलग है, you know, she's a goddess of death herself. I mean, she is death herself. उसके बाद आप मेरी प्रैक्टिस ये कहती है कि जब a person crosses over or dies, the soul decide whether they want to stay with us or they want to reincarnate. So Wicca believes in reincarnation, right? Irrespective of your deeds? Irrespective of your deeds. Of course, you So might कोई get a फर्क life नहीं of a पड़ता. cockroach next You time. can be the shittiest of person in this Okay. world. लेकिन जब आप मर गए तो वो सारी मोह माया आपने यहीं छोड़ दी. उसके बाद you are just a spirit. So let's say for example मेरी कोई XYZ रिश्तेदार था, they were horrible to me. When they cross over, and if they can communicate with me and talk to me, they will not have that you know, malignance towards me in their heart. या इतना मतलब उतनी खराब चीजें नहीं होंगी क्योंकि वो सब खत्म हो गए. That's human emotions. They are not spiritual. Correct. तो वो यहीं छूट जाता है. तो कोई स्पिरिट पहली बात किसी का खराब नहीं कर सकती. जो आप कह रहे हो बैड स्पिरिट, दे आर नॉट बैड स्पिरिट्स, दे आर एंटिटीज. वो डीमंस हैं. Okay. वो डिमोनोलॉजी में आ गए फिर. हाँ, मतलब Right? yeah, बट एक्चुअली प्योरली डिमोनोलॉजी में नहीं आए बिकॉज डिमोनोलॉजी में आप you know, you conjure the demons, you open the gate of hell, you conjure the demon and then you ask them to do your bidding. मतलब आप उनसे अपना काम करवाते हो, उनको ऑफरिंग्स देते हो और उनसे अपना काम कराते हो. सो दैट्स द डिफरेंट कॉन्सेप्ट. पर ये एंटिटीज जो है ना, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव एंटिटी है दैट दे वांट टू एंटर आवर वर्ल्ड. जो कॉन्जरिंग में कॉन्सेप्ट दिखाया व्हिच इज वेरी वेरी रियलिस्टिक. Alright, so हमने बहुत अभी we started talking about spirit moving to different world and जो भी हमने बात की, right? अब मैं I can see there are a lot of tattoos you have on your arms, right? And then is it a signal of Illuminati or something? Yeah, I know where you're going. Is it? No, okay. No, it's not. And okay, ऑनलाइन लोगों को गॉसिप करने बड़ा मजा आता है कि मुझे कोई मसाला मिल जाए. ओके, यहाँ पे ये कॉन्फिडेंट मैंने बात बोल दी तो ये मेरा ओपिनियन है, अब मैं इसके बारे में इसकी पैन बजाऊं. So similarly, Diljit, I mean, he's a absolute rock star, right? And very simple person. At least he looks like that, right? And he does this, right? Yeah, that is And the symbol of Illuminati. Illuminati, Yes. right? And is he being misinterpreted, or is he Illuminati? Or what is your take on it? First of all, just help break it down for the audience also, and the actual thing, not just your belief about it. What is it actually, so that people can understand कि यार एक symbol ऐसे किया तो उसका मतलब it's not I that you think crazy or something or whatever that sort. I think Illuminati is a conspiracy theory. I don't think there is anything like that. Okay. It's just a conspiracy theory. If there is, I wish they contact me. What do you mean by that? I also want to see, you know, what is it and what you can do. Okay.
Okay. I want to experience that, what it is. I remember many years ago, I got an email by somebody claiming to be a part of Illuminati, and they said that we will give you certain tasks, and आप ये चीजें करेंगे तो फिर then we will take you in Illuminati and everything. But this is a huge. I think they've drawn a lot of references. I think it was a fraud email from Nigeria. Okay, so we've drawn a lot of inferences and references to for the to movies, right? And Yes. as he's one of my very favorite actors, also Tom Hanks, right? And I think he's done this entire series on Illuminati, or the church versus The Da Vinci Code. Da Vinci Code, right? And it's the complete series, right? The trilogy है, पता नहीं क्या है, right? And उसके There is a trilogy. हाँ, and then they're showing the people are trying to destroy the church and kill the pope or whatever stuff like that, right? So it looks like an elaborate Version of conspiracy. Illuminati. हाँ. Yeah. But my knowledge is still there because I never researched on it and it's not my area of interest. देखिए पूरी ट्रिलॉजी में there are a lot of things जो सही हैं, there are a lot of things जो गलत हैं. Okay. Right? For example, they end it on the note with the girl who is supposed to be descendant of Christ. Okay. Now there is a lot of misinterpretation. Christ never married. Okay. पर एक वर्जन ये कहता है कि till the age of 33, 34, he was a normal human. He was living with his parents. He must have married, right? आप शादी करोगे तो बच्चे भी होंगे. Of course. But in Bible, there is and even in the other scriptures, there is absolutely no proof that he married. And after the age of 33, 34, he started preaching the word of God. And that's how, he truly became the son of God that he was. So वो पूरी picture जो है ना वो उसी के चारों तरफ revolve करती है. They've given it they beautifully painted it like a Illuminati version of it. Correct. But I don't know whether it is true or not. Do I want it to be true? I don't really care. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. But if it is true, I want them to contact me and not through Nigeria, please. It seems like you have something against Nigeria. No, I don't have anything against Nigeria. It's coming from a No. email to conspiracy theory. Actually, हमारे ज़माने में just when I was a young guy, जो scams होने शुरू हुए थे वो नाइजीरिया से ही हुए थे. So yeah, I respect Nigerians a lot because I have many friends from there and they'll be laughing right now because I practice voodoo. Voodoo नाइजीरिया में भी voodoo version होता है. देखिए सांतानेरा भी है, नाइजीरियन वुडू भी है, हेशियन वुडू भी है, न्यू ऑर्लिन्स वुडू भी है, बहुत तरीके के वुडू है. So I don't have anything. I love the people of Nigeria. all right. Me too. So going forth on this conversation, right? मतलब अभी हमने बात किया है. Of course, we've established it's a bakwas theory, right? Or maybe man-made. That is what I think. I don't know whether it's true or not. Okay. But at the same time, now I'm more intrigued about the fact, the relationship which is there between, but since you're a Christian, right? So please don't mind me. I'm not trying to base it on the religion. It's just that we just want to educate people in some way, form or the other. Right. So, जो ये witches वाला concept था, right? And as far as I've read or maybe I've learned, maybe through you in our conversation before this or here and there, कि वो generally क्या होता था कि कुछ भी अगर abnormal होता था, कुछ भी out of anomaly होता था, तो उसको एक outcast treat करते थे, या उसको जला देते, उसको मार देते, whatever ऐसे कुछ कर देते, right? So ये मतलब of course I've learned from you, I've seen in movies and blah blah blah, but the coven, right? And then you showed me this. This was the sign of it, right? Coven. Coven, right? Yeah. So how does that develops first of all, and what is the reality? Ground reality क्या है पीछे से history से? देखिए ग्राउंड रियलिटी हिस्ट्री ये है कि आदमी जो है ना हमेशा से औरत से डरा है और उस डर का इलाज उसने ये निकाला कि इन्हें बंधनों में बांध दो. But women have always been way more stronger than men, emotionally and physically. Can't agree more. Can't agree more. Right? विका एक ऐसा रिलीजन है, perhaps the only religion in the world, जब औरत के 4-5 दिन आते हैं, हम encourage करते हैं उनको spells and rituals करने के लिए, because we believe कि वो सबसे ज़्यादा strongest है तब, right? देखिए मैं हिंदुइज्म के बारे में बोल के किसी को अपसेट नहीं करना चाहता, लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ आपको. द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो वो अपने महल से नहीं थी, वो दूसरे महल में थी. Why? Because she was down. Yeah. Right? And even she says कि और जब वो उसके कपड़े खींच के बाल पकड़ के ले जा रहा होता है तो वो कहती है मैंने ऋतु स्नान नहीं किया है. Correct. क्योंकि
सब जब प्रोसेस खत्म हो जाता है उसके बाद बकायदा स्नान किया जाता है। इनको अलग क्यों रखा जाता है आप समझ रहे हो? फ्रिज नहीं होते थे पहले, तो जब किचन रसोई में जाते थे, इधर जाते थे, आटा खमीरा हो जाता था, ये हो जाता, बिकॉज बैक्टीरिया, राइट? ऑफ कोर्स। इससे ये लोग अलग कुटिया में, जो ब्राह्मण लोग होते थे वो लोग, उनकी वाइफ जो थी वो कुटिया में चले जाती थी, ये लोग अलग महल में चले जाते थे। एंड शी क्लियरली टेल्स दुर्योधन कि मैंने ऋतु स्नान नहीं किया है। तो वो बाल पकड़ता है और पानी के अंदर से लेकर के जाता है कि हो गया तेरे ऋतु स्नान, तो वो वहां ले जाता है। बट शी वाज स्टिल डाउन, राइट? करेक्ट। अगर वो इम्प्योर होता तो भगवान कृष्ण स्वयं क्यों आते उसको बचाने? वो भी तो कह सकते थे कि तू अपवित्र है, मैं नहीं आऊंगा, तू 5 दिन वेट कर ले। 18 दिन में तो युद्ध खत्म हो गया था, 5 दिन में क्या पर वो पहला क्यों आए? हाँ। और अपनी बहन को हम्म, राखी बांधती थी वो उनको। Can you see how beautiful this relationship is? करेक्ट। It is beyond, and the woman bleeds. कामाख्या माँ, she bleeds till today, करेक्ट। and that is the most powerful area. सबसे ज्यादा witchcraft होता है वहां पे, आर यू सीरियस? सबसे ज्यादा पावर वहां पे होती है। अच्छा। और हम जैसे लोग तो तरसते हैं वहां जाने के लिए दर्शन करके कि छू के आ जाएं बस। सफेद कपड़ा बिछाते हैं मंदिर में, सवेरे उसको निकालते हैं, पूरा लाल हुआ होता है। द स्टैच्यू ब्लीड्स, व्हाट इज दैट? दैट्स लाइफ। सो ये इशू है। तो ये औरतें, नाउ आंसरिंग योर क्वेश्चन, ये औरतें जो थी 13वीं शताब्दी, 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में, ये लोग थी दाइयां। ये जाती थी जंगल, वहां से जड़ी बूटियां लेकर के आती थी, कंकशंस तैयार करती थी, लोगों को दवाइयां देती थी और उनको हील करती थी। फिर आया मेडिसिन, which became clearly a male dominated profession, and their position was threatened. Why will you go to a doctor when you have your local healer? That is when the issue started, and they started saying that they are witches. तो ये टर्म जो है ना, पहले क्राफ्ट ऑफ द वाइज था, क्योंकि ये लोग वाइज विमेन थी, करेक्ट। सयानी। कहते हैं ना गांव में सयाने हैं, हाँ। राइट? तो ये सयानी थी, जिनको पता था कि कौन सी बेरी खिलाओगे तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, कौन सी बेरी खिलाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। ये थ्रेटन हो गए उनसे और इन्होंने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। एंड देन द क्रिश्चियन मिशनरी प्लेड अ मेजर रोल, जहाँ पे उन्होंने बाय फोर्स लोगों को क्रिश्चियन बनाना शुरू करा। और उसके बाद कन्वर्ट करना शुरू करा। और फिर देयर इज अ कॉन्सेप्ट, मैंने बहुत से पॉडकास्ट में बात करा है, द कॉन्सेप्ट कॉल्ड मेलिशियस मेलेफिक्रम। आप गूगल करिए, उसके बारे में पढ़िए। उसमें ये लोग साइंस बना दिए इन्होंने कि अगर आपकी बॉडी पे दाग है तो यू आर अ विच, अगर आपका बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो गया है तो यू आर अ विच, क्योंकि आपने डेविल के साथ कॉन्सुमेट किया था। अगर आपके हाथ पैर टेढ़े हैं तो आप डेविल को कॉन्जर कर रही थी, उसने आपको छुआ तो आपके हाथ पैर टेढ़े हो गए। इन्होंने उठा करके उन सबको जला दिया। 1 million women and kids were burnt alive and their husbands were made to watch in the name of witchcraft. Were they able to burn the real witches? No. They were too clever to run away. They might have transcended into something, some or another. मेरा फेथ ये कहता है कि वो डिस्पर्स हो गए यूनिवर्स में और उन्हीं का अंजाम है। So when people ask me कि आप कब बने, मैं बना नहीं। I was always. I just realized that I am. I'm like, it's actually, I'm like, आपने जो लॉजिकल फैक्ट मुझे बताया, राइट, अबाउट कि हम जंगल से जड़ी बूटियां ले आए, दे हैड नॉलेज ऑफ साइंस Correct. बिफोर साइंस वाज डेवलप्ड, मे बी इन अ मैनर, बट लेट्स सेटल द आर्गुमेंट देयर, ठीक है। पर जो आपने मुझे बोला कि जो स्मार्ट 13 विचेस यू सेड, Yeah, the original ones. Yes. so it's a definite number 13, Yes. and 13 is a number which is kind of considered in a different sense also, right? People are worried about it. 666 जैसे डेविल का नंबर बोल देते हैं, या But 666 is written in the Bible. yeah, It is actually written okay, that Satan's number is 666. okay. So now, okay, their numbers, numerology also has a role to play into it. I'm not sure how they've connected the dots. Of course, there's vast literature online and everything. I've never piqued my interest to read about it, not driven that way. और जैसे यहाँ पे 13 witches बोला, and उसके बाद of course they got scattered around the world, and आप उन्हीं के अंश हो या whatever. The witchcraft used to be very strong उस समय. Why उसकी एनर्जी इतनी डाइल्यूट हो गई है इतनी, और आर दे स्टिल प्लेइंग स्मार्ट गेम और लॉन्ग गेम? Which you're on spot. Yeah. Tongue in cheek moment. I think
हम लोग उतने प्योर नहीं रहे, लालच हम में भी है। तो आपने यू मीन अपनी प्रैक्टिस को डाइल्यूट कर दिया ओवर द टाइम लोगों में? बिल्कुल, बिल्कुल डाइल्यूट किया है। ओके। मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पहले कैंडल्स नहीं होती थी, पहले मशाले जला के विचक्राफ्ट होता था। हम कैंडल्स जलाते हैं बिकॉज इट्स कन्वीनियंट, इजी है। ईजी है, यू नो। सॉसपैन विचक्राफ्ट बोलता हूँ मैं इसे। 2 minutes instant noodle. So unfortunately, it's so sad that there are so many healers who are 2 minutes मैगी नूडल की तरह कॉपी पेस्ट पढ़ा और हीलर बन गए। ज्ञान सबके पास है, ज्ञान सबको बांटना है, ज्ञान सबने सुनना है। अटेंशन स्पैन लोगों का वैसे ही डिक्रीज हो गया है। जब पुराने ज़माने में किसी की बाइंडिंग करते थे हम, किसी को बाँधते थे, तो वो वेजिटेबल्स यूज़ करते थे, उसके अंदर बाँधा जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की लड़ाई करानी है तो करेला फाड़ के उसके अंदर चीज़ें डाली जाती थी और उसको बाँधा जाता था, उसे मिट्टी में दबा दिया जाता था। आज कैंडल है। आपको क्या लगता है पुराने ज़माने की विचेज़ क्या ऑयल यूज़ करती थी? ऑयल होते थे, कितना महँगा होता था और बार्टर सिस्टम चलता होगा ना उस ज़माने में तो। करेक्ट। तो बेचारे के पास तो कुछ नहीं होती, तो वैसे ही सारा समाज छोड़ के जंगलों में रहती थी। तो क्या देती थी? जड़ी-बूटियाँ। एग्ज़ैक्टली, जड़ी-बूटी लाती थी, ये लो बुखार की दवा, इसके बदले हमें आटा दे दो, हमें फला दे दो। हम तो चुपचाप अकेले जंगलों में अपना जीवन जी रहे थे, लोग आ गए हैं टाँग अड़ाने के लिए, ज़बरदस्ती जंगलों से बाहर निकाल के ले आए। आज भी आप देखिए जो विचेज़ हैं, इवन द मॉडर्न विचेज़ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके? हम बड़े एकल कटवे होते हैं, हमें अलग रहने दो आप। You know, even though I have my family and everything, but majority of my day is alone in my room. जो मेरा मंदिर भी है, you know, and to also answer your question, I'm not a Christian. I am many things, but I'm not a Christian. I was born into Christianity, and but I don't like the religion. But I love my Jesus. Similarly, I love Ram because I can connect with Ram ji, Hanuman ji. बाबा को तो जब बुलाता हूँ तब आ जाते हैं, you know, नीम करोली बाबा पहाड़ों से हूँ और शुक्राना गुरु जी. He plays a very important part in my life. Jai Guruji, Shukrana Guruji. I'm like, Jai Guruji, Jai Bajrangbali, Har Har Mahadev, and all this. Somehow it gives me a मुझे ऐसा लगता है comfort and 4 बड़े शातिर लोग थे, एक पहाड़ पे बैठे थे। सुनो कहानी बड़े मजे की है। 4 बड़े शातिर लोग थे, हाँ। एक पहाड़ पे बैठे थे। उन्होंने कहा दुनिया को कैसे मैनिपुलेट करें और कैसे इनका पागल बनाएं। तो उन्होंने कहा तेरा नाम हिंदू, तेरा नाम मुस्लिम, तेरा नाम सिख, तेरा नाम ईसाई, और इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया हम सबको। ये सारे अलग-अलग रास्ते हैं मेरे भाई, ऊपर सब एक ही जगह जा रहे हैं। करेक्ट। वो श्री राम ही थे, जो घूम फिर के हनुमान जी भी थे, जो शिव जी भी थे, वही जीसस थे, वही पीर फ़कीर थे, वही फिर गुरुजी भी हुए, वही फिर नीम करोली बाबा भी हुए और वही फिर साईं बाबा भी हुए। ये मेरा मानना है। आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन आउट देयर, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक। एनर्जी सारी एक ही है, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। पहले नहीं था, मतलब पहले, मतलब अभी भी, मतलब देयर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत एक आस्था रखते हैं, एक निष्ठा रखते हैं हुँ। अपने धर्म की तरफ, अपने सोच की तरफ, अपनी परवरिश की तरफ, राइट? व्हिच इज फाइन, मतलब एवरीबॉडी इज Correct. एंटाइटल्ड टू देयर ओन राइट्स, Correct. देयर अपब्रिंगिंग, देयर कल्चर. I also agree with that. I also have no issues, but I have issues with when you turn around in other people's. हाँ, करेक्ट. यार live and let's live, no? हाँ, क्यों उंगली करनी है बिना क्यों करनी है यार? सही बात है, क्यों? हाँ, क्या मिला तुम्हें? करेक्ट. पेमेंट मिल रही है कहीं से? हाँ. तो हमें बता दो, हाँ. है ना? What is that organization? हम्म. Live and let live. Live. People have you seen the shift in today's generation? Why is everybody running towards spirituality? I'm like, this is very astonishing, astounding of how you want to inject a better injector, you want to use it. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इतना ज़्यादा अपने आप से सब डिस्कनेक्ट हो चुके थे कि हमने एक दूसरे को सहारा बना के अपने आप को ढूंढने की एक नई नई राह चुनी है, Right. कह सकते हैं. देखो हमारा जो देश है ना, हम्म. बहुत बहुत खूबसूरत देश है, करेक्ट. आई ट्रूली बिलीव दैट. ठीक है? हम हमेशा से आध्यात्मिक रहे हैं और मेरा बिलीफ ये कहता है कि हिंदुइज्म ना एक अम्ब्रेला है, बाकी सब उसके अंदर से निकला है। आई स्वेयर, मेरे को ऐसा लगता है हिंदुइज्म से ज्यादा कन्वीनियंट रिलीजन भी कोई नहीं है. करेक्ट, दे आर वेरी एक्सेप्टेबल काइंड ऑफ. दैट इज ट्रू, राइट? एब्सोल्युटली, हाँ. बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे लगता है सब कुछ हिंदुइज्म के
अंदर से निकला है, और हमने घूम फिर के जाना भी वहीं है। सारे कॉन्सेप्ट देखो कहीं ना कहीं सेम है, राइट? जो आजकल की जनरेशन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर पहले हम कुछ ढूंढ रहे थे, फिर अब उन्हें ना रियलाइज हो रहा है कि जो बाहर ढूंढ रहे थे वो यहाँ है, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर बिकमिंग spiritual again. I wouldn't say again, I think I'll have to correct myself. Rediscovering. We are just rediscovering ourselves. We are coming into our being, and we are realizing that we have always been spiritual. And let's just go back to our roots. I think that's what is happening. So that it's a good thing, like if जैसे कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा। हाँ, हाँ। तो वही वाली बात है जिसको जब अपनी आई थिंक एवरीबॉडी हैज अ कॉलिंग, मुझे एक ऐसा भी लगता है, राइट? किसी को कहते हैं ना ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, राइट? एंड आई थिंक द एंटायर लाइफ नहीं मिलते, इज अ सीरीज ऑफ मेज। नहीं मिलते ढूंढने से भगवान। मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान कभी भी नीचे नहीं आता, ये मेरा बिलीव है। वो हमेशा लोग खड़े करता है। हाँ, मतलब यू ओके, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, किसी ने आपकी रोड में मदद कर दी, वो एग्जैक्ट, भी उनका रूप है। एग्जैक्ट। किसी ने आपको धक्का मार दिया और आपको लगा कि उसने गलत करा है, पर शायद आपको At the वाहन के सामने से no, I don't want to offend anyone, but I believe there is no Satan out there to get me. A rapist is a Satan. A murderer is a Satan. स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, आपको यही मिलेगा। मरने के बाद क्या हो रहा है मुझे क्या पता। पता, हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई सेटन है जिसके पास जो पीछे पीछे भाग रहा है कि इसका सोल मैं ले लूं। नहीं, बट मेरे सोल की जिम्मेदारी मेरी ही है। सॉरी, आई डोंट मीन टू कट यू हियर, बट मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे हमने आपने स्टार्टिंग में मुझे बात बोला था कि योर रिलीजन स्पेसिफिकली बिलीव्स इन रीइंकार्नेशन, यस, राइट? तो एक स्पिरिट एक बॉडी को लीव करती है, इट गोज टू अ डिफरेंट, इट गोज टू दिस प्लेस कॉल्ड समरलैंड। अच्छा, विका में हम यही मानते हैं, दे गो टू समरलैंड एंड दे वेट देयर, एंड देन इट्स अ सोल्स डिसीजन कि उसको रीइंकार्नेट होना है या रुकना है या लिम्बो में ही रहना है। वो कोई टॉर्मेंट नहीं हो रहा, कोई पीड़ा नहीं है उसे, कोई दुख तकलीफ नहीं है। दे आर जस्ट देयर, इट्स अ स्टेट ऑफ स्टेसिस, नथिंगनेस। काइंड ऑफ नथिंगनेस, एम्प्टीनेस। हु वुड, कौन रहना चाहेगा मतलब देयर आर nothingness में? spirits who want to। मोक्ष, जो ये हमारे रिलीजन मोक्ष बोलते हैं। हाँ, हिंदुइज्म में मोक्ष बोलते हैं, हर किसी को चाहिए होता है, वो मिलता किसको है पता नहीं किसी को। जो इस जिंदगी की देखो जो लालच को- सही में गुरु है ना, हाँ, और जो ब्राह्मण है असली, मुझे लगता है वो तो हिमालय पे चले गए। असली तो हमें कभी दिखते ही नहीं, क्योंकि वो तो सब उठ गए ना, फिर परे हो गए ना वो दुनिया से। मुझे मुझे ना सच में ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कैलाश पर्वत पे जाएं ना आज भी, तो कोई ना कोई एक असली बढ़िया, मतलब अगर मैं उनको छू भी लूं ना, तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन तर गया। of course, I'm like it's very difficult to let go of this worldly It is pleasure. extremely difficult, it is impossible। Possible, हाँ, It is difficult is an impossible। understatement. I came here in a cab, how can I leave it? I'm connected to you through Instagram, how can I leave it? But then again, that's not my faith। हम तो मॉडर्न हैं। मेरे को तो आज पिंक करना है, मैं कोलैब करूंगा। बट या लाइक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब इट्स अ वेरी फ्रेश आउट लुक अबाउट ए डायर पर्सपेक्टिव। मैं थोड़ा सा आई नो वी हैव कम टू अ पॉइंट जब हम एक बहुत पॉजिटिव जोन में आ गए, एक बहुत पॉजिटिव बात कर लिए, और मैं आपसे कुछ चीजों के बारे में एक कोई रैपिड फायर करता हूँ जो मेरे दिमाग में आता है ना, आपसे पूछता हूँ, आप Alright, बताना okay। कि ये ट्रुथ है, मिथ है, और Okay। मे बी इफ यू वांट टू गिव मी सम सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड अबाउट इट, Okay। ठीक है? Okay। कि आपने एक बात कही स्टार्टिंग में कि चौखट के बाहर जो आपका बेड सिराना था, व्हाटएवर, डोर इज अ डोरवे फॉर स्पिरिट्स टू कम इन एंड आउट। डू दे नीड इट? हम तो दिखाते हैं कि मूवीज में दिखाते हैं, या हम सोचते हैं कि स्पिरिट तो कहीं से भी आ जाती है, तो कि दरवाजा क्यों इतना बहुमूल्य है? क्योंकि आप दरवाजे से ही आते हो, कोई स्पिरिट किसी खिड़की से नहीं आती, कोई स्पिरिट किसी सुराख से निकल के नहीं आ रही, दरवाजे से आता है। अच्छा है दरवाजे से आएगा, बुरा है दरवाजे से आएगा। ओके, सो जो लोग एक रिचुअल बनाते हैं, शीशे दरवाजे होते हैं, आपको मालूम है? मेरे को ना ये बात करनी थी, पर मैं ट्रूथ एंड मिथ वाले में फंस गया हूँ, तो मैं पहले शीशे पे आ जाता हूँ, ठीक है? विल कंटिन्यू दिस। सो मिरर्स, ओके, मिरर्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ। मिरर्स आर पोर्टल्स। पोर्टल्स, हाँ, मतलब आप मिरर्स में these days I'm teaching my students to lock your mirrors। You literally have to lock your mirrors, anything can come out, because इतने प्रैक्टिशनर्स हो गए हैं जो आड़े टेढ़े स्पेल्स रिचुअल्स करते हैं। आप समझिए, जब आप स्पिरिट वर्ल्ड का दरवाजा खोल रहे हो,
एक रूल होता है हमारे में जिसमें हम ये कहते हैं यू शुड नेवर कॉन्जर व्हाट यू कैन नॉट सेंड बैक. सिंपल. fair enough. जब आप दरवाजा खोलते हैं तो आपका कंट्रोल होना चाहिए कि आप दरवाजे में से जिसको आने दे रहे हैं बस वही आए. देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड एंटिटीज वेटिंग टू गेट आउट. Correct. आपने दरवाजा खोल दिया, फिर आपने दरवाजा बंद नहीं किया, सिर्फ तो खुला द्वार है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है. पर हमारी तो दुनिया ही शीशे की नहीं है. आपने फोन की स्क्रीन देख लो, वो भी ग्लास है. नहीं, हर शीशा पोर्टल नहीं होता. नहीं, I agree, but okay, I'm gonna connect it to a very illogical thing maybe, but let's say for example, आपने एक मिरर बोला, it's a door to a demonic thing. No, no, no. अभी It's a portal it's a portal to the to a spirit world. spirit world. Anything can come out. ठीक है. Now आज की डेट में लोग अपनी जिंदगी में हताश हो गए, निराश हो गए, वो अपने फोन की स्क्रीन खोलते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, दूसरे की जिंदगी देखते हैं और अपने आप को इतना अंडरमाइन कर लेते हैं जिंदगी में कि अस्तित्व छूट जाता है. Correct. And then they resort to shortcut, Correct. or maybe to a malpractice or something, a life they wish to aspire and they can't get it. Maybe those kind of people reach out to you also कि मेरा ये करवा दो, मेरी ये डील करवा दो किसी से, किसी सुपरनैचुरल पावर से, या आपको ऐसा मंत्र फूक दो, whatever. Demon packs करा दो. Demon packs करवा दो. And are those real, bad? These demon packs are real. Yes, they're very real. They're very real. Very real. Okay, I'm now again the conversation going so many times. But then यही इंसान जो सुबह उठ रहा है और अपना इंस्टाग्राम देख रहा है और दूसरे की लाइफ देख रहा है और अपने आप को कह रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो एक बहुत मेजर बात भूल जाता है कि वो जो देख रहा है ना, तो मेरे भाई सब नकली है. It's all made up. Yeah. Anyone who's putting happy pictures on Instagram is a lie. Because if you're If you are happy, you don't have time. you don't have time to post. You're so lost into it. Yes, of course. एक चीज और मेरे को ये भी है कि आप नजर का कॉन्सेप्ट you understand, right? नजर लग गई, right? I am a 1000% believer of नजर. मैंने घर बर्बाद होते देखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ नजर से. Correct. So now in your witchcraft, right, is how are they parallel to a particular art that is also a part of a Yes, absolutely. उतारा करते हैं हम लोग भी. अच्छा. जैसे होता है उतारा, evil eye removal, वैसे ही होता है. Okay. और let me also tell you नजर है क्या. Okay. You have to understand this concept. Think of it like a leech. एक लीच है, वो आपके ऑरा फील्ड में आके चिपक गई. अब वो वही है, वो कुछ नहीं कर रही, आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर रही, लेकिन अब वो एक चीज और आपकी ऑरा फील्ड से चिपकी है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर इयर्स एंड इयर्स, इट विल स्टार्ट ईटिंग टू योर ऑरा. Of course, yeah. जब वो खा लेगी तो वो छेद हो गया, फिर वो अंदर आई, एंड देन इट स्टार्ट्स टू मैनिफेस्ट. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आप अपने मॉम डैड के साथ शादी का न्योता आया आपके घर और आप तैयार होके बेहतरीन कपड़े पहन के गाड़ी में बैठने जा रहे हो, सामने वाले अंकल निकले, क्या बात है जी, आज तो पूरा परिवार साथ जा रहा है. अननोइंगली उन्होंने अच्छे उससे कहा था, लेकिन अननोइंगली ये नजर है, वो आपके ऑरा पे आके चिपक गई. अब जब वो मैनिफेस्ट होनी शुरू हुई आपकी लाइफ में, तो कैसे मैनिफेस्ट होगी? ग्रह कलेश, डिफरेंसेस ऑफ आइडियोलॉजी, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, भेदभाव. दिस इज व्हाई nazar removal or evil eye removal is extremely important, because if it is not treated in time, that is what turns into like a darker magic or black magic. कुछ भी कह लीजिए आप उसे. All right, perfect. So I'm going to connect this to the question I was going through, right? So आपने एक object की बात करी, right? Evil eye. I'm also wearing one. Okay. And मेरे को किसी ने बोला कि evil eye आप खुद लेके नहीं पहनते, somebody should gift it to you. It's a myth or कहाँ लिखा है? it's a myth or it's a truth. Okay. I don't know. Okay. Oh, no, you don't know. Okay. And now, okay, let's say I'm wearing it now. Okay. And I have a belief कि यार मैंने पहन रखी है, but I don't even think about it consciously, subconsciously. Sometimes it's a neck gear. Sometimes it looks okay. I believe in fashion, or maybe नजर से मुझे भी लगता है, बड़ा डर लगता है नजर से. Maybe it might ward off those negative energy and everything. It won't. Your faith will. My faith will. My belief. मेरा फेथ है कि मैंने जो ये पेंडेंट पहना है वो एज अ नजर बट्टू काम करेगा. हाँ. तो वो काम कर रहा है. अच्छा, okay. But so it does work, right? It does work. But that is manifestation only, ना? It is. इसीलिए हम लोग बोलते हैं that if you really want something to wear,
that wards off evil eye, you should come to people like me and get a proper one. Okay. So you, And it doesn't have to be an evil eye. You can give me any of your jewelry. I can turn that into an amulet or a talisman and then give it back to you. all right. Now we said this, right? Okay. Again, this talisman or ये कोई भी आमलेट आप जो बोल रहे हो, right? These objects जो कभी तो सोचते हैं कि यार ये टोल टोट के लिए यूज होता है कोई भी ऑब्जेक्ट इवन अ कप ऑफ कॉफी कैन बी टर्न इनटू अ evil thing. Well, cup of coffee has your DNA. Yeah, of course, yeah. I can manipulate your DNA. Okay, yeah, correct. But so I'm just trying to understand कि ये यार कप कॉफी का कप मैं उठा के ले जाऊं और चलो ये नहीं उठा के ले जाते, टिश्यू पेपर लेने आता हूँ और जहां से आपने कॉफी पी है ना उसे स्वाइप करके ले जाता हूँ. आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इट. or damage with this if you intend to, right? Yes. It But is how- DNA. But how do you ward off like जैसे फॉर एग्जांपल आपके विचक्राफ्ट में भी आपके कम्युनिटी अभी कवन में भी कवन नहीं बोलूंगा मैं मतलब जैसे आपके नोन में आपकी कम्युनिटी में Hmm. यू माइट कम अक्रॉस पीपल जो अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे जो शायद हीलिंग करते भी होंगे कुछ हाफ रेड भी होंगे कुछ स्टिल कमिंग ऑफ एज भी होंगे राइट Hmm. एंड उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता होगा Correct. एक डिबेट होती होगी एक गुड और बैड की फाइट होती होगी शायद Correct. right? हर जैसे कि फ्रेंड सर्कल में भी होता है बिल्कुल होता है. तो हाउ डू यू हैंडल दैट एंटायर It is extremely difficult to run a kavan in India because everybody wants to do business here and everybody wants to be superior than the other. Let me start by saying that. Yet, काफी हद तक इतने सालों से तो मैं करता ही रहा हूँ तो कुछ तो सही कर ही रहा हूँ. You know, you have to tell them what to do and what not to do, when and where, and have control on people. That if you don't like anything about somebody, you tell me. I am the one who's leading the kavan. You don't have to go and tell that person. They might not like it. do you sorry I'm talking from a very non-factual knowledge okay yeah so is that like you're the leader of it you're drawing energy out of them also No, some way that's a lot of people do it. it happens it's It happens. It's Okay. true. Okay. ऐसा होता है. Okay. When I do, if I'm doing a ritual which requires more energy and I don't have it, I ask. Seek permission. Be respectful to people's energy. Okay. Don't steal. जैसे energy vampires होते हैं, right? So there are people who are doing it unknowingly. They don't even know that they are energy vampires. हमारे फ्रेंड सर्कल में ना हर एक कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड जरूर होता है कि यार अबे यार जब ये आ जाता आप देखो वो आएगा आपसे बात करेगा वो कुछ भी नहीं कहेगा बेचारा लेकिन उसके बाद आप ना बिल्कुल ड्रेन्ड फील करते हो. correct Unknowingly he is sucking onto your energy vampire है वो और उस कुछ बेचारे को खुद भी नहीं पता है. Can you do something about it? Of course you can. I don't want to name it I feel it Yeah. Yeah, it's quite natural होता है ऐसा उसको तो पता ही नहीं है that he or she is sucking onto your हम बोल देते हैं कि clingy है Needy bossy है, है needy है naggy है. But in spiritual terms we call them energy vampires because they are literally sucking the life out of you. They don't know how drained you feel after they leave. moving on to another aspect of it right okay हमने on amulets की बात किया ornaments की बात किया and आपने बोला कि true है you can put things into it and take things out of it and whatever this is the entire thing of it is there any way to protect yourself from such Yes, that is extremely important. जब मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमें किसी से पता चला है कि हमारे किसी ने हम पे कुछ कर दिया है आप भी उन पे कुछ कर दो. क्यों करना है भाई तुमने? तुम अपने आप को सेफगार्ड कर लो ना. but how do we safeguard my question is So there is a spell and ritual that we do. It's called reversal. भैया आपने हमें एनर्जी भेजी वो एनर्जी हमें समझ में नहीं आ रही आपकी एनर्जी आपको वापस मुबारक. अच्छा हमें नहीं चाहिए. हमने रिवर्सल कर लिया हमने अपनी क्लीनिंग कर ली हमने अपना प्रोटेक्शन कर लिया. but how do I do it like let's say for example like a common layman है जो ये सुन रहा है मैं ना आपको एक सिंपल सा रेमेडी बता दूं इससे सब रिलेट कर लेंगे. सेज सबको पता होता है लोग सेज जलाते हैं. सेज अगर आप गूगल करें मैजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेज इट विल टेल यू दैट इट हैज अ क्लिंजिंग इफेक्ट. cleansing हो रहा होता है yes तो जब आप क्लेंजिंग करते हैं तो क्लेंजिंग के लिए आप ये जला लीजिए धूप जला लीजिए चांटिंग कर लीजिए मंत्र जाप चला दीजिए कुछ भी कर लीजिए. इन सब चीजों से आप अपने आप को सेफगार्ड करते रहते हो. vibration If you cannot do that, the easiest way is silently sit comfortably
and then imagine a blue light covering you, and just tell the blue light that you are my shield and you are not going to let any negative thing enter it. This is my space and I claim it. जैसे हमारा घर है, वो घर आपका है। मेरे घर में हम लोग राजस्थान गए थे और राजस्थान में वो पपेट्स होता है ना, तो वो पपेट्स हम लेकर के आए थे। बहुत साल पहले की बात है, वो बहुत पुराने हो चुके हैं। मेरे घर में लोग आते हैं ना, आप कभी आओ मैं आपको दिखाऊँगा। हमने उन्हें टाँग नहीं रखा है, मैंने उन्हें बिठा रखा है सीढ़ियों पे। तो कभी वो ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी पोज़ीशन चेंज हुई है तो वो मूव करते रहते हैं। वो मेरे घर की गार्डियन स्पिरिट्स हैं। they happen do it on their own. Somebody हाँ, maybe somebody in the अपने आप family उसको move around करता हो, ऐसे नहीं होता? नहीं, सब काम वाली सफाई करते समय उठा के यहाँ रख दिया whatever. नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। You've observed it. हमने सीसीटीवी लगा के चेक करा है। एंड देन व्हेन माय स्टूडेंट्स कम एंड स्टे विद मी, दे टेल मी दैट हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मेरे घर में तो ये सब चीज़ें हलचल होती रहती हैं। देखिए मेरे घर में इतना सारा काम चलता रहता है, क्या मैं अपने आप को सेफगार्ड करके नहीं चलता होऊँगा? बिल्कुल चलता होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ नेवर मेस विद स्पिरिचुअल पीपल। यू डोंट नो उनके कौन-सी एनर्जी गार्ड कर रही है और वो आपके साथ क्या करें। जैसे हम पहाड़ियों के लिए ना बहुत फेमस है कि देवता लगा दिया, देवता लगा दिया। तो मैं हमेशा बोलता है ऐसे देवता नहीं लगाते हम, हमारे देवता होते ही इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप हमारे साथ कुछ खराब करोगे तो खराब हो जाएगा आपका। Another truth or myth connecting to this. हुँ। बड़ी अच्छी बात है, आप जो बात करते हैं मुझे उसमें ट्रूथ और मिथ मिल रहा है। अ, भगवान पहाड़ों में ही मिलते हैं। उनका मतलब कहते तो हर जगह बात आपके सही दिल में, है। मतलब पहाड़ों में 4 धाम जिसे हम बात करें, हुँ। दे आर ऑल इन द ऑन द नहीं, मैं देहरादून से हूँ, देवभूमि। हाँ, चलो they yeah, so I'm just trying to say, I mean, it's they find it a, let's say a heights. So ये it's a truth, it's a myth. I believe that they are everywhere, of course, but भगवान हर जगह है, लेकिन भगवान पहाड़ों पे नहीं, भगवान ऊँचाई पे मिलते हैं। ऊंचाई पे, हाँ, वही heights. देखो दैट इज़ अ स्पिरिचुअल बीइंग हू इज़ वाइब्रेटिंग ऑन द हाईएस्ट वाइब्रेशन लेवल, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते जाना। तो अगर हमें उनके पास जाना है तो हमें ऊपर जाना You have to पड़ेगा। elevate yourself. In a way, distance also, and then you have to elevate yourself यस, to reach रीच देयर। that power. Right. एग्ज़ैक्टली। Okay, very good. Sorry, again going back to another question. When you said ornaments and everything, right? हुँ। I see that you have a लबूबू। Labubu, right? And this is also आजकल बड़ा इंटरनेट पे इसको बड़ा एक या एज अ ornament of evils करके एडवर्टाइज किया जाता है whatever. करेक्ट। Is that truth I or myth? think it is a marketing strategy. I have the entire collection. मेरे हर बैग के साथ हर मैचिंग कलर की है। You know, I love accessories. ये ब्लू बैग लाया हूँ तो आज ब्लू लबूबू है मेरे साथ। जब मैंने ये खरीदा मैंने सबसे पहले जाके अपने मंदिर में जाके चेक किया। मैंने कहा कुछ स्पिरिट एंटिटी है कि नहीं। So there is a demon called Pazuzu. तो people are relating it to that कि Pazuzu, लबूबू सेम है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं मसूरी में अपनी फैमिली के साथ घूम रहा था। वहाँ पे एक औरत थी, शी लिटरली केम टू माय फेस एंड सेड कि ये तो डीमन होते हैं। मैंने कहा फिर अब मैं क्या करूँ? मतलब व्हाट डू आई डू विद दिस इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन मी? इट्स अननेसेसरी एंड इट्स अनवेलकम्ड। आई नेवर आस्क्ड फॉर इट, बट यू स्टिल गिवन इट टू मी। तो ठीक है, ओके एंड आई सेड ओके एंड आई मूव्ड ऑन। अब मैं क्या उसको समझाऊँ कि नहीं है, क्या है? कहते हैं ना जिसको ज्ञान की देखो हम इंसान समाधि हैं, ना हो उसके हमें अज्ञान ही ज्ञान है। ये तो आपने बड़े सोफिस्टिकेटेड शब्दों में बोला है। मैं थोड़े से अनसोफिस्टिकेटेड शब्दों में बोलता हूँ, सुअरों के आगे मोती नहीं डालते। तो जिसको पता ही नहीं है, मैं उसे क्या बताऊँ? जब उसका समय आएगा, वो सीख जाएगा। अभी उसका समय नहीं है, समय सबका आता है। Another connecting to this truth or myth. Does all the things happen in the due course of time only? Is there a way through this practice, through manifestation, हम लोग उसको जल्दी पाने की कोशिश करते हैं? Of course, पर still वो होना तो अपने समय के हिसाब से ही है ना, एक समय नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता? ऐसा It's a myth. नहीं होता। इट इज़ अ मिथ। विचक्राफ्ट इज़ एनर्जी मैनिपुलेशन। वो चीज़ नहीं हो रही थी, तो आप मेरे पास आए हो ना। सो आई एम गोइंग टू मैनिपुलेट दैट एनर्जी इंटू योर फेवर एंड मेक इट हैपन। Another question. Oppenheimer, Hmm. he created a dangerous bomb, right? राइट, And that based on energy. राइट। What is that then? Energy It's a is weapon of mass dangerous. destruction. It is. Energy is. Okay. What is Was- Kundalini activation? Was he a kind of a witch? I wouldn't know that. I'm just trying to connect the dots. No. Or is there a way to And identify a witch? also, is Sorry. okay. Is there a way to identify a witch? Yes.
हमारा lifestyle, the way we carry ourselves, our logic and everything. And also if somebody is, so there is a concept called closeted witch, wherein people practice witchcraft, but they don't, because the word witchcraft has a lot of negative connotation to it, and it has a lot of baggage. Okay. So they don't say it. I say it probably because I really don't care what people think about it. मेरे को कोई रोटी नहीं खिला रहा है, अपने घर में रोटी मैं ही ला रहा हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे बहुत ऊपर उठ गया, कुछ नुकसान भी हुए, कुछ फायदे भी हुए, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, because I don't look at the word witch as a negative thing. I still, when you say witch, I say thank you, because in my head I'm hearing craft of the wise. I think we've spoken a lot about it, and then I know there are a lot of people who belongs to your community, and who follows the religion, preaches the religion. If they need to join a coven, right? How can they do that? DM me on my Instagram. Just DM you, right? Yes. Okay, perfect. I'll put the link there so that if they want to connect with you. Yeah. And please understand, he does healing and also healing of things by choice. He is not a satanic power or a No. or a catalyst of someone who would expedite your gains to harm somebody else. And inka energy and aura is different. You can't dissect it, right? Maybe I'm sorry, I'm saying it. I'm not trying to. What is nazar nahi laga raha hu. नहीं लगा But yes, पाओगे. yeah. I like this confidence. I like this confidence. Love it. Okay, so we're almost at the end of the show, right? And then just one last thing which I ask everybody. As the name of the show is the Addicted Show. So Yeah. I just want to understand one thing you're very addicted to in your life, like an addiction kind of thing. It can be ritual, a routine, a cup of coffee, or anything which comes to your head. I'm addicted to my lifestyle. I'm high on life. Wow. Mira, the moment I get up is the moment my witchcraft starts. When I'm stirring my cup of coffee, I am chanting. मैं आपको आपके व्यूअर्स के लिए बताता हूँ, आप सुबह सुबह चाय लो, कॉफी लो, चीनी मिलाते हो, उसको ना घुमाना शुरू करें. Okay. ठीक है? Like you are opening and say, I'm going to open today's day as a wonderful day. I will have all good opportunities come to me. I will have my roads open. I will have money coming to me. I will have opportunities coming to me. I will have job offers come to me, so on and so forth. In a जो way, भी through a आपने cup of बोलना है. tea or water or glass, और आप lemonade, उसको- opening a portal. वो आप उसको घुमाए और उसके बाद उसको पी जाए. Manifestation done. तो मेरा तो वहीं से शुरू हो जाता है. Yeah. So I am addicted to my lifestyle and I'm addicted to your show. Thank you so much. One last a message you would want to give it to the people, so that they, मतलब देखो करना तो लोगों ने वही है जो उनके मन में है, हाँ. ठीक है, पर हम उनको एक ऐसी वर्ड ऑफ वाइस. देखो मेरा वर्ड ऑफ वाइज तो आई डोंट नो, क्योंकि मैं अभी आई एम स्टिल अ लर्निंग सोल, बट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, मैं फ्रॉम माय एक्सपीरियंस व्हाट आई कैन से एग्जैक्टली वही बोलूंगा जो आपने बोला, जो मन में आए वो करो, बट लिव एंड लेट लिव. ऑलराइट. Thank you so much. Thank you for being here. It was wonderful talking to you. थैंक यू फॉर हैविंग मी. Pleasure is all. Thank you.